Surat. So we are going to, of course, this introduction is too small for her illustrious microbiologist's career, and we need to talk more about it. But, firstly, you must be surprised that, I'm carrying a, mask right now. So anyways, I must tell you that this has become kind of habit nowadays. As soon as I start, for out of the house, I used to earlier think of my bag and my phone, and that used to be okay, I'm going. Now bag, phone and mask has become as important. So that's why I just by default, that I'm so used to having a mask all around all the me, that I today forgot that it's a Zoom meeting. So there is no need for a mask right now. And that too, when I'm talking to Neeta ma'am, it becomes all the more, I wonder how people must be taking when they go near her. And this lady, who's an amazing COVID warrior, I'm sure she must be taking all that brunt, not only at the workplace, but also at home and around herself. She must be worried about both the children all the time, because she has been dealing with corona kits, corona cases, corona tests all the while. It's been 3 months, and her hospital has taken care of 50,000 tests. That's just not funny. Hats off to this woman who's sitting in front of us right now, hale and hearty, but we know every day, every moment, what she must be going through. Hats off to Neeta ma'am. Thank you for being with us, ma'am. And we are highly honored you to be not only part of community, but also part of our country, who's, without people like you, we wouldn't have been able to survive, ma'am. It is all because of real, true patriots like you that we are here. Thank you so much. So you, with your career as a microbiologist, you did your MBBS from Jaipur, and after that you did your MD in microbiology. So Neeta ma'am, first of all, maybe we would like to know, as a microbiologist, what is your role? Like, all do you do, ma'am? People must know about what exactly is your work in your particular line. Please, ma'am, please elaborate on this. Thank you. Good morning, all. It's my pleasure to interact with my community. Thanks for inviting me. As you told that I'm a microbiologist, actually people don't know much about microbiology. Yes. Usually people talk about pathology, but earlier microbiology was a part of pathology, but now it has become full-fledged. Okay, so microbiology, as the name suggests, it deals with the microbes, microorganisms जिनको हम naked eye से नहीं देख सकते हैं, वो वाले जो organism हम में infections produce करते हैं. So basically infectious disease का diagnosis microbiologist करते हैं अपनी lab में. Okay, so as you all know, जो pathogens होते हैं, pathogens means जो organism human beings में disease produce कर सकते हैं. ऐसे organism, bacteria, viruses, fungi, or some parasites. All of you must be knowing about some bacterial diseases like typhoid and diarrhea, dysentery. Yes. And viral diseases like dengue, chikungunya, some common cold also caused by viruses, or COVID, as you all know, it's like going on, this pandemic is going on. Then fungal diseases like candida and many skin diseases of fungal origin. Then parasitic diseases like amoebiasis, malaria, elephantiasis, जो हाथी पाव जिसको बोलते हैं, जो पैर सूजन, elephantiasis. So these are all like I have given examples of some infectious diseases. So we deal with them and उनका हम diagnosis हमारी lab में करते हैं. जी. और फिर माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च काफी मेन रोल अदा करती है, क्योंकि जो भी नया आता है, एनी न्यू वायरस व्हिच कम्स or emerges,
वो उसके बारे में रिसर्च के द्वारा ही हम उसकी वैक्सीन बनाते हैं, उसके डायग्नोस्टिक किट्स बनाते हैं. सो रिसर्च इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज every year you must be seeing that a new virus comes. Exactly. Every year new virus is emerging. Okay. Yes, we would definitely like to know about this funny, interesting nature of virus. Is it the same virus which changes its composition, or is actually new viruses are coming to this land, to Earth? Your viruses are like you can say bahurupia. Okay. They keeps on changing. They keep on changing their antigenic structure, what we call as. I जैसे म्यूटेशन यू कैन टेल दैट वो अपना see. जेनेटिक मेकअप अपना जेनेटिक कंपोजिशन चेंज करते रहते हैं Right. to fool us. Actually they are smart bugs. So what do they do is to avoid our immune system, वो अपना एंटीजेनिक वेरिएशन ले आते हैं. तो जैसे हम वैक्सीन बनाते हैं उससे पहले वो अपना जेनेटिक मेकअप चेंज कर लेते हैं, तो वो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं रहती. इसलिए आप देखते होंगे कि हर साल फ्लू के लिए नई वैक्सीन आती है, So क्योंकि true. Cool. बिकॉज वो लोग अपना जेनेटिक मेकअप चेंज कर लेते हैं. तो हमने जो वैक्सीन बनाई है इट बिकम्स नो लॉन्गर इफेक्टिव. ओके, सो दिस इज द मेन रीजन कि अभी डेंगू के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं बनी है, HIV के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं बन पाई है, क्योंकि ये वायरसेस अपना जेनेटिक मेकअप बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं. Ma'am, it is so funny to know that the human species, which is on the epitome, which is on the highest on the evolutionary pyramid, and they are kind of chasing this virus, and it is not coming in control. Each time it changes its shape, and we are not really able to deal with such a insignificant thing, ma'am. They even jump the species also, like this COVID bats में से हम में आया है, so they can right. host also. Okay. Okay. See. That's why it's difficult to deal with them. Ma'am, Right? it's very interesting that we had been dealing with such microorganisms, as you said, from bacteria to various viruses, since the beginning of the eternity. Whenever the Earth began, they were part of our system. Yes. Probably all the bacteria, and I remember from once Edward Jenner, who discovered the वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स. हमारा टाइम वो था मैम जब हम स्मॉल पॉक्स से बहुत डरते थे. हमारे टाइम में बहुत सारे लोग जो सरवाइव किए हैं वो फेसेस वगैरह पर बहुत सारे उन पैचेस और स्कार्स के साथ वो सरवाइव किए हैं. उस वजह से आज तक, जबकि मेडिकल एडवांसमेंट आई थिंक इज द बिगेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. वी हैव रियली ओवरकम एंड वन ओवर. We have been triumphant species over so many microbes and so many diseases. Suddenly, this one little virus, which is corona, has divided the whole, the periods. हम सतयुग त्रेता युग भूल गए मैम. It is all BC and AD in a new way now. Before corona and after corona, it has completely changed the system of this world. So we would like to know more about this, ma'am. We are quite not only that sitting at home scared, we are not venturing out into the markets, restaurant, everything is bare. People are suffering due to economic and physical and mental stress. Everything is there. So ma'am, one thing that we do not know whether these so-called COVID test kits are authentic or fake. People have these doubts in their hearts. So we would want from the person who is there right in front of us, who can tell us the reality. Are these absolutely authentic, ma'am? One. Secondly, once they are detected, how much percentage that you think that people can sit at home and can quarantine themselves and really can be fine? So we want to know about various preventive measures as well as what is the proper cure that is being given to them. Over to you, ma'am. Thank you. So about preventive measures, because we don't have any vaccine against it, plus there is no antiviral drug as such, which is curative. Okay. So, and this is too early actually, only 3 or 4 months have passed. So even doctors don't know about the pathophysiology or how will this virus behave. Actually, nobody knows exactly. So best measure is to prevent it. Like prevention is better than cure always. So
Preventive measures are general measures only, like you all know, SMS, that is S for is the social distancing or physical distancing. So 2 meters apart. So no hugging, no handshaking, only everything you have to take like distance, you talk with the distance with the mask on. Okay, so general people don't need to have N95 mask, but surgical mask will do. I don't prefer cloth made mask. Okay, so surgical mask will be better because it's a 3-layer mask. Okay, so और आप जब मैंने मोस्टली पीपल को देखा है कि मास्क लगा के बैठे हैं, लेकिन if somebody comes closer to you, you lower down and then talk. So that is dangerous because whatever जो virus या any infectious substance जो आपके उसके front surface पे deposit हो गया है, so आप जब उसको नीचे करते हैं तो directly it comes into contact with your nose and Right. mouth. Right. So dangerous practice. तो आप जहां तक हो सके आप मास्क ऑन ही रखें या फिर दूर से बात करें. ओके, खासकर आप बाहर जाएं तो मास्क हमेशा लगा के जाएं. प्लस इट इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. व्हाट डज इट मीन? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मींस जब कोई भी व्यक्ति खांसता है, छींकता है या इवन बात भी करता है तो बहुत सारे माइक्रो ड्रॉपलेट्स उसके नोज एंड माउथ से बाहर निकलते हैं. ओके, सो दे फॉर सम टाइम दे रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर and then they settle down on the surfaces. Okay, so यदि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट वो ड्रॉपलेट इनहेल कर लेंगे और आपको इन्फेक्शन होने के चांस हैं. लेकिन यदि थोड़ी देर के बाद वो सरफेस पे भी जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो इफ एनी अदर पर्सन टचेस दैट सरफेस लाइक नॉब्स या लिफ्ट के स्विचेस या इलेक्ट्रिक, सो यहाँ पे दूसरा व्यक्ति टच करता है तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है. और ये वायरस 2-3 दिन तक inanimate like non-living surfaces पे survive कर सकता है. Okay, so it's better to clean those surfaces with hypochlorite solution or sanitizer frequently. और जब आप कभी भी बाहर जाएं तो बार बार अपने हाथ धोएं. बाहर से घर में वापस आए तो आते ही पहले हाथ धोएं. Change your clothes and preferably take bath. और किसी को घर में किसी सरफेस को छुए बिना आप ये सब करें. ओके, और जहां तक बाहर ना निकले बिकॉज वी हैव कंपल्शन, वी आर डूइंग कोरोना वर्क, तो हमें तो जाना ही है. लेकिन यू हैव ऑप्शन, यू कैन अवॉइड गोइंग आउट, यू कैन सस्पेंड योर ऑल सोशल एक्टिविटीज दीज डेज. आप अभी कुछ भी पार्टी ना करें, किसी से ज्यादा मिले जुले नहीं. बहुत ज्यादा जरूरी हो तो घर के बाहर जाएं. खासकर बुजुर्ग लोग जो ओल्ड पीपल हैं, डायबिटिक लोग हैं, वो तो लोगों के संपर्क में आना अवॉइड करें. सैनिटाइजेशन एंड हैंड वॉशिंग की टेक्निक भी आपने बहुत जगह देखी होगी. Absolutely. उसको हम मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं तो सुमन के करके आप बोल सकते हैं. जैसे सीधा अपने दोनों हाथों को सीधी तरह से धोएं. यू फॉर उल्टा, दोनों साइड पीछे की तरफ से धोएं. और नकल्स पे जो आपके ये नकल्स होते हैं उन पे धोएं. आप अंगूठे को पूरा रब करें और कलाई तक धोएं. ओके, तभी आप पूरे सरफेसेस क्लीन करेंगे. तो खासकर जब आप बाहर जाके आए तो इस तरह से हाथ धोएं. पूरे 6 स्टेप्स आप करें तो भी आपके हाथ क्लीन हो जाएंगे. ओके, एवरी नॉट नेसेसरी कि आप सैनिटाइजर ही यूज करें. सोप और रनिंग वाटर्स इज इवन बेटर. ओके मैम, हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे because you know when somebody who's as knowledgeable and authentic about everything, and we just rely on lot of information which comes to us through WhatsApp and all, so we would like to know from you two things. One is, what is the scope of vaccine? When is it going to come? हम कब तक इसी तरह घरों में डर कर बैठे रहें? One. और secondly, ma'am, the latest found so-called this plasma therapy, how far it is valid and is working in the favor of this disease. So please tell us, ma'am. अपना अभी बात करना बाकी रह गया है, so पहले मैं उसके बारे में बोल देती हूँ. We were talking about the home isolation and everything, so everybody knows the symptoms कि खांसी, कफ, मोस्टली ड्राई कफ और फीवर हो, साथ में आपको ब्रेथलेसनेस कभी हो और चेस्ट पेन हो, तो आप सोच सकते हैं कि शायद आपको कोरोना. इट्स नॉट ऑलवेज देयर बिकॉज सिम्टम्स आर लाइक कॉमन कोल्ड. ओके, सो विदाउट टेस्टिंग यू नेवर नो कि दिस इज कोरोना और नॉट. ओके, तो
आपको सिम्टम्स लगे तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और ये भी मैं सजेस्ट करूंगी कि देयर इज नो हरी टू रश टू द हॉस्पिटल। एक्चुअली आप डायरेक्ट हॉस्पिटल ना चले जाएं, आप टेलीफोनिक कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल इटसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। आप वहां जाएंगे और दूसरे पेशेंट्स के संपर्क में आएंगे, तो जी यदि आपको नहीं है कोरोना तो भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो बेटर है कि आप टेलीफोन पे कंसल्ट कर लें अपने फैमिली डॉक्टर से। इफ ही सजेस्ट तो आप कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं। सो मोस्टली 80% पीपल में सीरियस डिजीज नहीं होता है। जो नॉर्मल हेल्दी यंग पीपल हैं जिनमें और कोई बीमारी नहीं है, तो उनके चांसेस हैं कि उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, वो all right, they will become all right in 15 to 20 days. Okay, so don't insist on getting admitted to the hospital. Okay, ये नहीं कि आपको कोरोना पॉजिटिव आ गया तो आपको एडमिट ही करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। होम केयर इज ऑल्सो एडवाइजेबल इफ सिम्टम्स आर अंडर कंट्रोल। ओके, सो आपको यदि घर पे रखा है तो आप नियमित रूप से आपके अपने आप वो लोग डॉक्टर्स जांच करेंगे, आपका बीपी लेंगे, आपका डेली विद इन 2 और 3 डेज आपका ब्लड काउंट्स और सब चेक करेंगे। और अलार्मिंग साइंस जैसे ही हो आप उनको इन्फॉर्म करिए। यदि आपको बहुत हाई फीवर है और आपका यू कैन बाय अ पल्स ऑक्सीमीटर और समटाइम्स डॉक्टर्स आल्सो प्रोवाइड। उससे आपका जो ऑक्सीजन लेवल है यदि वो 95% से बिलो जाता है, दैट इज अलार्मिंग साइन। तो तब आपको एडमिट करने की, ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ सकती है। Okay, so you can stay at home, and if any complication or any alarming sign is there, you can get admitted to the hospital. Okay, this is one thing. If testing is required, तो testing के कौन-कौन से methods हैं? तो आपने एक सुना होगा RT-PCR. This is the gold standard method. Okay, this is the most reliable one which we are doing in our lab. So RT-PCR is basically आपके नोज और माउथ में से स्वाब द्वारा, जो रुई का फाहा होता है उसके द्वारा सैंपल लिया जाता है। फिर उसको हम एक वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है उसके अंदर डिप करके वो लैब में ट्रांसपोर्ट करते हैं। लैब में पहुंचने के बाद ये एक आरएनए वायरस है। This COVID-19 is an RNA virus. So in PCR, what we do is a polymerase chain reaction. In PCR, what we do is we directly detect the RNA of the virus. Okay, so it is the most reliable test because we are directly detecting the virus. Okay, so what we do in the lab is पहले हम उसका RNA निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर उस बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद उसका RNA का डिटेक्शन एक PCR मशीन के द्वारा होता है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, अराउंड 6 to 8 hours minimum are required. Okay, so this is PCR. So if PCR comes positive, there are high chances that you are affected by corona. Okay, so it's usually a foolproof test, right? Next, आपने सुना होगा रैपिड टेस्ट और एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। Right, absolutely. Within last 15 to 20 days, the antigen tests have become available. Okay, so this is also detecting the virus itself. Antigen means virus. वायरस का जो पार्ट है उसको डिटेक्ट करते हैं। वायरस में बहुत सारे एंटीजन्स होते हैं, तो अलग अलग किट में अलग अलग एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। तो ये भी एक रिलायबल टेस्ट है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम एम्पलीफाई नहीं करते। जो पीसीआर में छोटा स्मॉल डीएनए को भी हम मल्टीपल कॉपीज बना के फिर डिटेक्ट करते हैं। तो बहुत कम वायरस यदि बॉडी में है पेशेंट के तो भी वो डिटेक्ट कर पाएंगे पीसीआर से। लेकिन एंटीजन डिटेक्शन में वायरल लेवल हाई होगा तभी हम डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम एम्पलीफिकेशन नहीं कर रहे हैं। इट इज अ पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, लाइक पेशेंट के बेड साइड पे हम जाके वो टेस्ट कर सकते हैं या घर पे लाके भी टेस्ट किया जा सकता है। so that is an advantage, but disadvantage अर्ली स्टेज में जब वायरस का लेवल बहुत कम है बॉडी में तब वो डिटेक्ट नहीं होगा। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि यदि पॉजिटिव आ गया है तो इट इज ऑलमोस्ट 100% पॉजिटिव, लेकिन यदि नेगेटिव आया है तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए इफ यू हैव साइंस सजेस्टिव ऑफ कोरोना। ओके, सो दिस इज विद इन 15 to 30 मिनट्स इस टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। ओके, लेकिन सैंपल वही स्वाब लेके ही किया जाता है। All right. नेक्स्ट थर्ड इज जो काफी लोग जानना चाहते हैं, एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट। ओके, Yes. antibody is the substance which our body produces in response to antigen. Okay, so antigen is the foreign substance, virus, bacteria, anything. और antibody क्या है? जो हमारा immune system उसकी लड़ाई में के दौरान प्रोड्यूस करता है। Okay,
सो तो एंटीजन हमेशा पहले डिटेक्ट होगा क्योंकि वो पहले अटैक कर रहा है बाहर से, राइट। और जब हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है तो उसके लिए कुछ टाइम लगता है, मिनिमम 7 to 10 days आर देयर बिफोर एनी डिटेक्टेबल एंटीबॉडी वी कैन डिटेक्ट बाय द टेस्ट। ओके, सो फर्स्ट टू 10 days में एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा और वो ही सबसे क्रूशियल पीरियड है। ओके, सो एंटीबॉडी टेस्ट इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये आप सबको समझने की जरूरत है। एंटीबॉडी टेस्ट डायग्नोसिस नहीं होता है, इट कैन बी यूज्ड फॉर सर्विलेंस और सर्वे पर्पस, लाइक इस कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं, और इस कम्युनिटी में इस एरिया में कितने लोग इस वायरस को एक्सपोज हुए हैं, ये हम एंटीबॉडी टेस्ट से पता लगा सकते हैं। ओके, एक्यूट स्टेज है, सिम्टोमेटिक स्टेज है, तो मोस्टली एंटीबॉडी टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। एंटीजन टेस्ट, डिटेक्शन टेस्ट और पीसीआर टेस्ट इज द एप्रोप्रिएट वन। ओके, सो एंटीबॉडी डिटेक्शन लेटर स्टेज में जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन होगा और कौन से एरिया में जब वैक्सीन आएगी तो कौन से एरिया में वैक्सीन की जरूरत है उसके लिए, प्लस स्टार्टिंग में आईजीएम एंटीबॉडी आते हैं और लेट स्टेज में आईजीजी एंटीबॉडी आते हैं। सो IgM antibody, if we are detecting, so it means the active infection is there. Okay, but later stages. Okay, detected, then it is convalescent phase. Here comes the plasma therapy. Okay, जब पेशेंट में IgG एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं, जब पेशेंट रिकवर हो गया है और वो कॉन्वेलेसेंट फेज में है और उसमें IgG लेवल आ गया है, ऐसे पेशेंट का प्लाज्मा हम प्लाज्मा थेरेपी के लिए यूज करते हैं। Okay, I see. Okay. so if it's like a vaccine, it is a passive vaccine. Okay, जब हमारी वैक्सीन बनेगी वो क्या करेगी, जब वो वैक्सीन हमें, जैसे हमने पोलियो की वैक्सीन हमने ली, डीपीटी लिया या टीबी की वैक्सीन लेते हैं, तो वैक्सीन एक्चुअली करती क्या है, वैक्सीन हम जब देते हैं तो एक वो बहुत लो लेवल का इन्फेक्शन प्रोड्यूस करती है, इसकी वजह से वो एंटीजन हम देते हैं पेशेंट को बाय इंजेक्शन, पोलियो ओरली ऑल्सो, तो हमारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, राइट। ये एंटीबॉडीज हमें प्रोटेक्ट करते हैं नेक्स्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट। जब नेक्स्ट टाइम हम पोलियो वायरस के संपर्क में आएंगे या हम डेंगू तो वैक्सीन है ही नहीं, दूसरे वायरसेस के संपर्क में आएंगे लाइक मीजल्स वैक्सीन, तो नेक्स्ट टाइम हम जब मीजल्स वैक्सीन के संपर्क में आएंगे तो आवर बॉडी ऑलरेडी नोज इट बिकॉज हमने उसको लो लेवल का इन्फेक्शन दे दिया है, राइट। सो वो उनको वायरस को किल कर देगी और हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। दैट्स व्हाट द वैक्सीन डज। ओके, तो अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है इसमें, ओनली ट्रायल। सो प्लाज्मा थेरेपी इज अ वैक्सीन काइंड ऑफ थिंग। व्हाट इन दिस द पर्सन और द पेशेंट जो रिकवर हो गए हैं और उनमें आईजीजी लेवल आ गया है, ऐसे पेशेंट का प्लाज्मा लेके हम दूसरे पेशेंट को देते हैं जिनको अभी डिजीज ऑन है या एक्यूट डिजीज है। ओके, उनकी बॉडीज आपने रेडीमेड एंटीबॉडीज जो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा में लेके दिए हैं, वो एंटीबॉडीज पेशेंट के अंदर जाकर वायरस को किल कर सकते हैं। दिस इज लाइक ट्रायल बेसिस पे चल रहा है अभी, और प्लाज्मा थेरेपी कोई नई चीज नहीं है। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स साइंटिस्ट ने देख लिया था कि यदि कॉन्वेलेसेंट आदमी का आप सीरम या किसी दूसरे पेशेंट को देते हैं तो उस पेशेंट को फायदा होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलते हैं। जैसे कि मदर, जब हम मदर का जो फर्स्ट 2-3 डेज का जो कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो मिल्क यदि बेबी को दिया जाता है उसमें भी एंटीबॉडीज होते हैं, वो भी ट्रांसमिशन ऑफ एंटीबॉडीज है। ओके, phenomenon also. So in we give plasma of convalescent or recovering patient to the diseased patient और उनके एंटीबॉडीज, लेकिन ये डेंजरस भी हो सकता है यदि यह ठीक से मैच ना किया जाए। लाइक ब्लड की ट्रांसफ्यूजन भी प्रॉपर मैचिंग के बाद दी जाती है, ऐसे ही प्लाज्मा भी। इसीलिए प्लाज्मा बैंक बनाए जा रहे हैं जहाँ पे प्लाज्मा रिस्टोर करके रखा जाएगा और जो प्लाज्मा जिस पेशेंट के साथ मैच होगा उसको वो दिया जाएगा। So that plasma therapy. Okay. That's a great information. Thank you so much for this, because people were kind of, there had been things coming in the newspapers as well as, WhatsApp messages, which have, spoiled our knowledge indeed. We don't know what to trust and what not to trust. In this light, if I come across a person like you who can really guide us with whatever is the right information and what we must know is very crucial.
Thank you so much for this $1 million advice to all of us. And also, not just that we got to know about plasma therapy and the kits, different type of kits available in the market, and what to use, but also you told us a lot of real preventive measures for the same. Thank you so much, ma'am. Beside this, ma'am, now that the onset of monsoons and हाँ, ये तो कोविड है मैम। कोविड टाइम से पहले ही जब मॉनसून आता था तो मॉनसून की बारिश की बूंदों की खुशी के साथ साथ इस स्ट्रेस को भी साथ में झेलते थे, that now there is going to be a rainfall, a shower of chikungunya, dengue, malaria and all such problems. So how will we cope with when already hospitals are full, everything is already choco-block, and then if suddenly patients of all these viruses also come across, then how will we handle, and how do you foresee this situation? It will be a dangerous mix because as you said, the medical system is already overwhelmed due to this virus. Like it is day by day, the situation is worsening, and this monsoon has set in. So मॉनसून डिजीजेस भी स्टार्ट होगी ही होगी, और बहुत सारे अपने कंट्री में बहुत जगह फ्लड्स भी आ रहे हैं, तो उसके बाद पोस्ट फ्लड सिचुएशन dangerous. So mosquitoes will breed on that, and then mosquito-borne diseases like dengue, chikungunya, malaria, which are caused by different types of mosquitoes, वो start हो जाएंगी. So it's better or better to protect ourselves. Okay, so as I told you, the mosquito-borne diseases हैं, तो आप you should avoid the bites of mosquito. जैसे डेंगू का मच्छर है वो दिन में काटता है, तो आप दिन में भी अपने खिड़की दरवाजे बंद रखें, फुल स्लीव के कपड़े पहने. अभी तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, यदि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको भी फुल कवर्ड कपड़े पहनाएं. आजकल तो मस्किटो भी आ रहे हैं, यू कैन स्टिक टू द क्लोथ्स. ओके, यस यस, अवॉइड करें, बहुत आउटडोर्स में ना जाएं, बहुत जहाँ ग्रीनरी हो, जहाँ मच्छर होने के वहां ना जाएं. अपने घर के पानी के भर के कहीं भी ना हो, स्टोर ना करें पॉट्स में या आपके गार्डन में, कहीं भी जहाँ पे पानी स्टोर हो रहा हो वहां पे ब्रीडिंग होती है मच्छरों की, खासकर डेंगू जो दिस दूसरे जो मच्छर हैं जिसको टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं, आप उनको पहचान सकते हैं, उनके स्ट्राइप्स होते हैं टाइगर जैसे, और वो लोग दिन में काटते हैं. तो आपको दिन हम रात में सब मस्कीटो रिपेलेंट्स वगैरह लगाते हैं, दिन में इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो दिन में भी ध्यान रखें. मलेरिया के मच्छर मोस्टली रात में काटते हैं, और मलेरिया थोड़ा डाउन है फॉर्चुनेटली. डेंगू चिकन ऑन द राइज. ओके, तो these mosquito you can avoid them. इसमें फॉर्चुनेटली मैन टू मैन ट्रांसमिशन नहीं है. यदि एक डेंगू का पेशेंट है तो आपको उससे डेंगू या मलेरिया नहीं होगा, ओनली मच्छर के काटने से ही होगा. ओनली हेल्थ केयर वर्कर्स आर एट रिस्क, जो उनके संपर्क में, उनके ब्लड के और बॉडी फ्लूइड्स के संपर्क में आते हैं, उनके लिए रिस्क है. अदरवाइज जनरल पब्लिक को मैन टू मैन ट्रांसमिशन इसमें नहीं है. ओके, फिर वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत आने वाली है, क्योंकि बहुत जगह सीवरेज लाइन कंटेमिनेट हो जाती है ड्रिंकिंग वाटर लाइन से. सो या आप बाहर जाते हैं और कभी कहीं भी आप पानी पी लेते हैं विदाउट एनी लाइक विच इज बॉइल्ड वाटर और आरओ वाटर, तो आपको वाटर बॉर्न डिजीजेस, या आप बाहर जाके पानी पूरी चाट खाते हैं तो वो सब कंटेमिनेटेड वाटर से बनी हो सकती है. तो वाटर बॉर्न डिजीजेस लाइक टाइफॉइड, डायरिया, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस ए एंड ई, ये भी वाटर बॉर्न. तो वाटर एंड फूड कंटेमिनेट अनसेफ फूड से बिना ढके हुए, या उसके ऊपर मच्छर मक्खी जो ट्रांसमिट करते हैं एक दूसरे जगह से, जो मक्खी है वो बहुत फिल्दी चीजों पे बैठ के आपके खाने पे बैठ सकती है. वाटर बॉर्न, मॉस्किटो बॉर्न, फूड बॉर्न डिजीजेस. दूध भी आप जैसे बाहर ना पिए तो अच्छा है. जो कोल्ड मिल्क is not advisable, only pasteurized milk you should take. Okay, thank you so much, ma'am, for all these preventive measures that you are telling us, ma'am. It is so crucial. And
वैक्सीन जो हम सोचते हैं कि सिर्फ बचपन में ही वैक्सीन ली जा सकती है, ऐसा नहीं है। एडल्ट्स कैन आल्सो टेक वैक्सीन, लाइक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। जब हम बचपन में छोटे थे तब तो वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं थी, कुछ राइट। वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी, तो बच्चों में हेपेटाइटिस ए वैक्सीन की जरूरत है। 12 इयर्स के बाद इंडिया में इतना एक्सपोजर ऑलरेडी हो जाता है कि हम इम्यून हो जाते हैं। ओके, तो टीबी की वैक्सीन आप बच्चों में दे सकते हैं, और हेपेटाइटिस बी एट एनी एज 3 डोजेस ऑफ वैक्सीन आई विल रिकमेंड टेकिंग द वैक्सीन। Yes, yes. So we talked about a lot of such unfriendly devils for mankind, जिसने हमारी लाइफ को बहुत ही हेल बना दिया है। हम परेशान हैं इन छोटे वायरस और बैक्टीरिया से, जो न जाने कभी मच्छर के थ्रू, तो कभी हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, तो कभी किसी और एनिमल के थ्रू हमारी बॉडी को होस्ट बना लेते हैं और हमें बहुत 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 बीमार कर देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यही करते हैं? आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी गेस्ट हमारे पास है, और यू नो वी आर ट्राइंग टू ब्रिज द गैप विथ एन एक्सपर्ट लाइक नीता मैम and a very sweet Manasvi Khandelwal, who's there with us right now. Look at her, she's bubbling with vivacity and charm, and such a beautiful pretty girl in front of me. And don't just go on the looks, her brain is as wide and wonderful. You know, her wit goes for medical content writing. Like, I don't know how she thought of such a beautiful career. She's done masters in biology. She's BSc in industrial biology, and you know, it was a new thing for me. What is industrial biology? And now today we are going to get it exactly from her, that these microbes that we are so scared of, they are not just so devilish, they are friendly too. So over to Manasvi to find out how these bacteria, viruses, or whatever, are they of any use to us too? Are they friendly? Come on here, Manasvi, over to you. Good morning, everyone. Namaste, Anita aunty. Namaste, Manju aunty. Hello, Dr. Neeta. Thank you so much for providing me this opportunity, and thank you, Neeta ma'am, for going in such a detail regarding the COVID-19 testing and other therapies. People are much in misconceptions regarding those. So we have already talked about the infectious microbes. Microbes are be it bacteria, viruses, fungus, not always harmful. हम लोगों को पता भी नहीं होता कि we have trillions of microbes in and out our body, even in our surroundings, on our body, inside our gut, everywhere. When we talk about the benefits of the microbes, actually from the beginning of our life, when from the era, from thousands years back, microbes are considered to live in every situations. There are extremophiles. They live in deep and dark oceans to the highly temperature lavas. They have the capability to survive in any conditions. Okay, so in our gut there are trillions of bacteria and microbes. बेसिकली हमारा जो गट फ्लोरा, उसे बोलते हैं गट फ्लोरा, तो उसमें बहुत सारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी और हमारी इम्यूनिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. आप लोगों ने शायद रियलाइज नहीं किया होगा, इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज, हमारी कंट्रीज जो रूरल एरिया या फिर अफ्रीका के रूरल विलेजेस हो गए, या इंडियन रूरल कंट्रीज, या फिर उसमें इन्फेक्शियस डिजीजेस का नंबर comparatively काफी कम है. When we talk about US, England, they are like thousands of cases of inflammatory bowel syndrome, infectious diseases. They have been suffering since ages from those. But India में अभी as the westernization is coming close, हमारे यहाँ वो diseases धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं. And उसका reason I guess सबको ही clear है कि हमारा जो incline है वो वेस्टर्न कल्चर के टुवर्ड्स थोड़ा सा जा रहा है. क्योंकि बचपन में हम लोग हमेशा जब भी बड़े हुए तो हमारे पेरेंट्स हमें सराउंडिंग्स में एक्सपोज करते थे. हमें कभी ऐसे नहीं रखा गया कि हाँ वी विल बी क्लोज्ड इनसाइड आवर चार दीवारियों के अंदर, या ऑलवेज एक्सपोजर ऑफ एयर कंडीशनर्स,
एवरीथिंग। तो इसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुकी है कि हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फाइट अपने आप करेगी। तो दिस इज जो हमारी गट फ्लोरा है तो वो हमारी हेल्प करता है इस चीज को बिल्ड करने में। नाउ जब भी आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, इफ आई गो विद आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में 3 कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज वात, पित्त एंड कफ। Yes. वात, पित्त एंड कफ। लेकिन जब इनमें से कहीं पे भी कुछ इम्बैलेंस आता है तो हम डिजीज प्रोन हो जाते हैं। दिस इज ऑब्वियस कि जब हम नेचुरली हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली वी आर अट्रैक्टिंग एनी इन्फेक्शियस ऑर्गन। और दूसरी चीज, अब जैसे सीजन चेंज हो रहा है तो अगर हम नेचर के हिसाब से देखें, अगर कहीं पे भी जैसे हाई टेम्परेचर है, अगर जिस पे रोटी बनाते हैं पैन है, फ्राइंग पैन है, दैट इज वो गर्म है, बहुत हाई टेम्परेचर है, लेकिन जब हम उस पे पानी डालते हैं तो उसमें पानी की बूंदें छलकती हैं। तो सिमिलरली हैपेंस विद आवर नेचर। समर सीजन जब हाई टेम्परेचर होता है और जब बारिश आती है तो आवर बॉडी टेक्स टाइम टू शिफ्ट फ्रॉम वन सीजन टू अनदर सीजन। तो इस ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग दिस सीजन चेंज, इस ड्यूरेशन में हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी ड्रॉप डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग बाकी जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए प्रोन हो जाते हैं। और सिमिलरली उनके लिए ये बेनिफिशियल कंडीशन है और हमारे लिए ये थोड़ी ड्रॉबैक वाली कंडीशन है, क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, लेकिन उनके लिए ये ब्रीडिंग सीजन है क्योंकि उनके डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल कंडीशंस आ रही हैं, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ये सब उनको ब्रीडिंग, इट्स लाइक अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर देम। तो इस तरीके से हम प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए। अब बात करते हैं बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोरा के बारे में। हमारी बैक्टीरियल जो गट लाइनिंग होती है उसमें ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो अगर एक लिमिटेड अमाउंट में रहे या पर्टिकुलर स्पीशीज रहे, डाइवर्स भी होता है वो, तो तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर किसी भी एक्सटर्नल एलिमेंट्स, वेदर इट इज आवर डाइट और लाइफस्टाइल, डिहाइड्रेशन, इनसे उनका जो बैक्टीरियल स्पीशीज जो होती हैं उनकी कॉलोनीज में ईदर नंबर इंक्रीज होता है या वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से मेनली इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, इम्यूनिटी कम, ये सारी चीजें होती ही हैं। तो हमें इनको आपने ध्यान दिया होगा जब भी हमें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स, जब भी आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती हैं, दे गिव अ सैशे, जिसको वो बोलते हैं कि पाउडर में मिक्स करके, आप वाटर में पाउडर होता है, पाउडर को वाटर में मिक्स करके आपको पीने को बोलते हैं। बिल्कुल सही। Yes. What are these actually? These are the spores of lactobacilli or other microorganism that improves your gut flora. क्योंकि एंटीबायोटिक्स हमारी जो इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया है उसको तो किल करेगा ही, लेकिन साथ में हमारा जो नेचुरल हेल्थी गट फ्लोरा है उस पे भी हार्मफुल इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से यू हैव नोटिस्ड एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, पीपल में गेट डायरिया, वॉमिटिंग। तो डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो हमारे माइक्रोफ्लोरा का अनहेल्दी होने से हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको लैक्टोबैसिलाई का एक सैशे दिया जाता है इसके लिए। करंटली रिगार्डिंग द हेल्दी माइक्रोबायोलॉजी, और हम अपने जब भी हेल्दी माइक्रोब्स के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों ने प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स काफी कॉमनली यूज हो रहा है नाम। Exactly, I wanted to hear. आपसे ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी भी था, क्योंकि नंबर वन, जब आपने बात की कि हम एंटीबायोटिक्स के साथ एक और सैशे मार्केट से लेकर आते हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि जो हमारे फूड हैबिट्स में ही इस तरह की चीजें हो जो हमारे इन बैक्टीरिया को इंक्रीज कर सके, विच आर रादर फ्रेंडली फॉर आवर गट फ्लोरा? यस, डेफिनेटली। हम अगर नेचुरली हेल्दी हैं तो वी नेवर रिक्वायर एनीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड टू मेंटेन आवर नेचुरल हेल्थ। ओके, बेसिकली दीज प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स जो दी जाती है वो उस कंडीशन में दी जाती है जब आप यू आर ऑलरेडी अंडर सर्टेन एलिमेंट्स, लाइक जब आपका हेल्दी माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब है। लेकिन अगर आप रूटीन लाइफ की बात करें तो देयर आर, हमारा जो इंडियन डाइट है दैट इज वेरी डाइवर्स
and rich in multiple components, multiple healthy component, be it fiber, be it complex carbs. तो जिसकी वजह से जो हमारा माइक्रोबायोटा है उसको ग्रो करने में और हेल्दी लाइफ सर्वाइव करने में हेल्पफुल होता है. तो जब, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप प्रोबायोटिक्स, आपका याकुल्ट के सेशे आपने टीवी कमर्शियल्स देखे होंगे कि दे सजेस्ट यू कि आप याकुल्ट अपने घर में रखिए और डेली एक सिप लीजिए. सही. बट आई वुड सजेस्ट कि ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये उस कंडीशन के लिए होते हैं जब यू आर टेकिंग एंटीबायोटिक या योर इम्यून सिस्टम इज फाइटिंग विद सम इन्फेक्शंस. लेकिन रेगुलर डेज में इफ यू आर टेकिंग प्रोबायोटिक्स तो आप जो अपना नेचुरल माइक्रोफ्लोरा है उसको काम करने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे. यू आर टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड. हमारी जो हेल्दी लिविंग की कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें हमारी जो नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल अर्जेस हैं, उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए. क्योंकि जब हमने प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रीबायोटिक्स आर लाइव बैक्टीरियाज. वो उस कंडीशन में दिए जाते हैं जब आपका गट माइक्रोबायोम काम नहीं कर रहा, तो वो माइक्रोब्स आपके गट में जाके उनके फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. लेकिन अल्टीमेट टारगेट यही होना चाहिए कि हमारा हेल्दी ब्लड फ्लोरा मेंटेन रहे. इसके साथ ही आपने पूछा था हेल्दी ऑप्शंस क्या हैं हमारे, जिससे हम नॉर्मल लाइफ में मेंटेन कर सकें. तो उसमें हमारी डाइट ऑलरेडी इतनी रिच है कि हमें बचपन से दही, छाछ, लस्सी ये सब चीजें पिलाई जाती हैं. या फिर जितने भी फर्मेंटेड फूड्स हैं हमारी डाइट में, वेस्टर्न कल्चर में डोसा, इडली ये सब इंक्लूडेड नहीं होते. वी हैव ऑलरेडी रिच डाइट विद फर्मेंटेड फूड्स. तो हमें कुछ स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती. लेकिन आज जिस तरीके से वेस्टर्न डाइट्स लाइक बी इट, क्योंकि उनका जो फर्मेंटेड फूड होता है दैट इज मेड ऑफ ईस्ट. एग्जैक्टली. हाँ, ईस्ट इज बिट हार्मफुल. ईस्ट इज हार्मफुल. तो हमें हमारे दही है, छाछ है और लस्सी है, इसमें प्लेंटी ऑफ लैक्टोबैसिलाई होते हैं जो आपका हेल्दी गट फ्लोरा को मेंटेन करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे. और सेकेंडरी, अगर आप अपनी डाइट में फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंक्लूड करते हैं तो हमारा जो गट फ्लोरा है वो एक्टिव रहता है. दे विल गेट टाइम टू डाइजेस्ट, क्योंकि हमारे अंदर जो एंजाइम्स हैं उनमें फाइबर्स डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, बट नॉट दैट मच. आप देखते होंगे कि गाय सेल्यूलोज खाती है. सेल्यूलोज इज अ फाइबर. गाय में एक अलग टाइप का एंजाइम होता है सेल्यूलेज, जो उसको डाइजेशन में हेल्प करता है. हमारा जो गट फ्लोरा है, जब हम फाइबर कंटेंट रिच कर देते हैं, फाइबर्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर हार्ड टू डाइजेस्ट, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है. तो इसीलिए जो माइक्रोब्स हैं वो उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. तो इस तरह से हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और दे कैन सर्वाइव ऑल्सो. Manasvi, fantastic. Two things which are very important. I think all the audience who are listening to this now, and of course this is live on YouTube as well. So a lot of people must be, getting benefited with the same. Two things that Manasvi just told us. One was she talked about a very important thing, that how, soil replenishes itself. So we must not take things which are from outside, in a medicine form. Let body replenish itself, its own healthy bacteria, one. And secondly, she talked of a very important thing, if everybody had noticed. She talked about how this change of season, how it is a breeding ground for many, infectious microbes. And she gave a wonderful, analogy to the same. That how on a hot tawa agar hum pani dale to usko settle hone mein time lagega, it is bubbling. Same thing happens in our body when suddenly there is a season change. Fantastic, Manasvi, we are totally impressed. At the same time, very quickly we would want to know from you, see, you have great knowledge about, not only the modern sciences, which is microbiology, but also Ayurveda, which, Manasvi, somehow, I may not need to quote, but I would love to quote that you have got that in your lineage. You've got it as legacy. Dr. Leeladhar Khandelwal, who's
one of the pioneers in the Ayurvedic science, and you have got that in your genes, you know. So I would like to know, did Ayurveda ever know about these microbial diseases? And if yes, then what was the mode of treatment during those old days? Thank you, Manju aunty. Ayurveda, as we all know, is originated 5,000 years back. Yes. Basically, when Lord Dhanvantri emerged from every आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बेसिकली हमारे में इन्फेक्शन, चर्म रोग और बोन्स के जो डिजीजेस होती हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस होती हैं, सबका अलग अलग मेंशन है. रिगार्डिंग दीज माइक्रोबियल डिजीजेस आयुर्वेदा में कोट किया जाता है कि ग्रह, नक्षत्र और इनविजिबल जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से कुछ डिजीजेस होती हैं. So these invisible elements are microbes because we cannot see them with the naked eyes. Yes. Because yes. in that time microscopes were not available, so they considered it invisible organisms. So basically they have inside our body. ठीक है. When we talk about the treatment from these infectious diseases in Ayurveda, Ayurveda always talks about maintaining the balance between our three constitutional elements like Vata, Pitta and Kapha and our everyday life, so that it can create a harmony between our health and healing too. We can maintain our health without even taking these medicines. This is what Ayurveda tells us. Wonderful. Ayurveda, thank you. आयुर्वेदा में आपको सबको पता ही होगा कि बेसिकली जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है डाइटरी, सेकंड होता है आपका नेचुरल अर्जेस को मेंटेन करना या कंट्रोल करना, एंड थर्ड होता है हर्ब्स व्हेन इट इज नीडेड. वी डोंट टॉक अबाउट ऑलवेज टेकिंग अबाउट द मेडिसिन. वी बिलीव इन curing the things naturally. So आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई इन्फेक्शियस डिजीजेस या गट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो दे डेफिनेटली टेल यू टू हाइड्रेट प्रॉपरली. Yes. To hydrate properly. Microbes are not only inside our gut. One thing I should mention that there are mainly 1 in 3 women are suffering from UTI, urinary tract infections. And you might be seeing it is very common these days. ठीक है. तो ये क्यों हो रहा है? हमारा जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल की तरफ इंक्लाइन है, लाइक वी आर वर्किंग मॉर्निंग 9 to 7 and we are sitting, we sometimes forget to take water. तो जब एसिड कंटेंट प्रोड्यूस, जब हमारा वाटर लेवल कम हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन के चांसेस ज्यादा है, which cause and we forget to even urinate. We suppress our urges to pass the fluid. हम यूरिनेशन सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा यूरिथ्रा या यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वो ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है यूरिन, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ या फिर फंगस ग्रोथ, ईस्ट, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से वो इंक्रीज हो जाता है. और व्हेन वी urinate after a long time we might feel little itching or burning sensation. Yes, that's a major problem with lot of girls. Particularly I have heard of UTI, and particularly maybe because of using of public toilets. So tell us more about. Yes, does that increase because of using public toilets, and why? Basically UTI is so common. There are bacteria that causes that interact that get inside your urinary tract, so that they cause the infection. So when we use public toilets, तो क्या होता है, किसी ने पहले से यूज किया हुआ है, मे बी she might be suffering from UTI, so she has that bacteria, but and when you sit on the same toilet seat, then that bacteria will get connected with your system and you will get infected.
बट बेसिकली तो हम इसको जो प्रिवेंट करने का मेजर्स देखें तो पहली चीज हाइजीन मेंटेन करना ही है व्हेनेवर यू सिट. दैट्स व्हाई हमारे यहाँ शुरुआत से इंडियन टॉयलेट्स को Yes. प्रमोट किया जाता था, लेकिन अब कल्चर के साथ या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी वाले लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है, तो इस वजह से हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं. लेकिन उसमें भी हमें हमें हमारे हाइजीनिक मेजर्स का बहुत ध्यान रखना जरूरत है. जब भी आप बैठे ध्यान रखें कि क्लीन करें टॉयलेट सीट. Yes. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. दिस इज समथिंग हमें याद रहता है कि हमें ये करना है, लेकिन समटाइम्स इन सो हरी और बहुत ज्यादा प्रेशर होता है या कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप भूल जाते हैं. और दूसरी चीज ये है कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो अगर हम बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ भी जाते हैं तो दैट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम. Yes, yes, that's perfect. Very well said. अभी कुछ टाइम जब कफ और पित्त की बात हुई तो मुझे ऐसा लगा लिटिल डॉक्टर लीलाधर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड टॉकिंग. It was so wonderful. How she wonderfully explained everything about not only these basic Ayurveda, but also connecting it with modern biology, which is fantastic. Also, Manasvi, there are a couple of more things that I would really want share from you as well as Dr. Neeta about few things. We would like to know from both of you. There are many such microbial diseases which we don't even know that they come through microbes. For example, multiple allergies, which are particularly skin allergies, foot and mouth disease, or maybe the athlete's foot or corns in the feet, and also some of them, definitely dandruff like things, mostly, which people don't even know how they emerge and what is the cure, because they feel 1000 shampoos के जो ads आते हैं वो भी उस dandruff को बाहर नहीं निकाल पाते. तो what is the remedy for this, whether in Ayurveda or in allopathy? But it just becomes too much of an issue. Even food related allergies, people are fed up, and suddenly, nowadays they talk of milk and lacto allergies are there. वीट से बहुत लोगों को आजकल एलर्जी हो रही है. सो ये सब कुछ क्या इनमें कहीं भी माइक्रोब्स का रोल है? मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी. वन, हाउ इन आयुर्वेदा. टू, how to identify and treat them, from Dr. Neeta. Please, ma'am. And please, Manasvi, over to you both. So dandruff you were talking about. See. So dandruff may be caused by microbes and sometimes not so. Okay. So sometimes just as a itchy scalp, it's very dry or very oily scalp, or due to stress, people stress-induced dandruff is also there. But Okay. dandruff cases may be due to some fungal infections. जैसा एक परफर नाम का फंगस होता है, उसकी वजह से dandruff हो सकती है. So the remedies may be clean your scalp regularly. More often you should shampoo your. Medicated shampoo can be used which contain ketoconazole drug. Okay. And if you are sometimes you are allergic to some shampoos or some hair care products and you keep on using them, then also you develop some itchiness and dandruff kind of thing. So avoid them. And so whatever suits you, that only you should use. Okay. And next thing you told about the itchy, like foot, athlete. Yes. That is fungal origin. Okay. Athlete's foot caused by Taenia fungus. Okay. So basically what happens is fungal infections occur in those areas of the body which are moist. Like if you wear shoes for a longer period of time in moist conditions, like in rainy season, then you are going to develop these fungal infections. Similarly, in the groin region, in the axilla, that is the underarms. So these are the places where you get the fungal infections. और ये भी खास रेनी सीजन में आपको ध्यान रखना है, फंगल इन्फेक्शंस ज्यादा होते हैं क्योंकि मॉइस्ट कंडीशन अगेन दे आर फेवरेबल फॉर फंगाई टू डेवलप. ओके, तो आप क्लीन रखें. एंटी फंगल पाउडर से आप डस्ट कर सकते हैं. जो एंटी फंगल पाउडर्स आते हैं आप वो लगा सकते हैं सुबह नहाने के बाद, तो आप उससे बच सकते हैं, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दिस सीजन.
not throughout the year you are not allowed or you are not recommended to use antifungal, because आप ज्यादा एंटीबायोटिक्स या एंटीफंगल यूज करते हैं तो आप अपने नॉर्मल इम्यूनिटी को डाउन कर देते हैं. Okay, if you are giving from outside help, then your body will not sit up against it. Okay, so जितना हो सके जब तक आपको डिजीज नहीं है तब तक आप एंटीबायोटिक ना लें, एंटीफंगल भी ना लें, जब Yes. रिकमेंडेशन पर ही लें. ओके, सो जैसा मनस्वी ने बताया, एंटी माइक्रोबियल आपके जो डिजीज कर रहे हैं उन बैक्टीरिया को तो मारते हैं, साथ में आपके जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो इसलिए आपको बाहर से प्रोबायोटिक फिर लेने पड़ते हैं. और जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है आपको विटामिन B12 भी प्रोड्यूस करते हैं आपके बॉडी में. सो आपके विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी इस वजह से हो जाती है. इफ यू आर फ्रिक्वेंटली टेकिंग एंटीबायोटिक कोर्सेज, विद इन 1-2 months you are getting again taking the antibiotics even without prescription from the doctors. Okay, तो आप एंटीबायोटिक्स अवॉइड करें, एंटीफंगल्स अवॉइड करें, जहां तक जरूरी हो तभी लें. और किसी दूसरे के प्रेस्क्रिप्शन पे कभी ना लें कि उसको ऐसा हुआ था तो हमने उसको ठीक हो गया तो हम सेम ड्रग ले लें. ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. मैम आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है और मैं इस बात को वापस दोबारा आप ही के शब्दों में बोलना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा ना लें एंड ओवर द काउंटर ड्रग्स किसी की सलाह वाले तो बिल्कुल ही ना लें. आपने ये बहुत अच्छी बात बोली मैम कि एंटीबायोटिक्स जब हम लेते हैं तो बहुत सारे हमारे हेल्दी बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इसलिए एज फार एज पॉसिबल बिलीव इन योर ओन इम्यूनिटी एंड ट्राई टू अवॉइड दीज एंटीबायोटिक्स. वंडरफुल मैम. आई मीन एक डॉक्टर के मुंह से ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई कम मेडिसिन लेने का प्रिस्क्रिप्शन हमें दे रहा है, विच इज सो वैलिड, सो ब्यूटिफुल. इनफैक्ट आप सबने जो हमें सिखाया वो बहुत बड़ा एक डोमेन था जिसमें आपने हमको एक नए तरह से जिंदगी जीना सिखाया. आपने कहीं ना कहीं दोनों ने इस बात पर स्ट्रेस किया कि हमें पुराने वाली चीजें वापस देख कर लानी चाहिए कि जो बचपन में मिट्टी से खेलने पर हमें इम्यूनिटी मिलती थी, जो हमें हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते थे मल्टीपल टाइम्स, इफ यू आर यूजिंग द वॉशरूम वॉश योर हैंड्स 3 times, दैट इज व्हाट अवर आयुर्वेदा एंड अवर ओल्ड स्क्रिप्चर्स यूज्ड टू टेल अस. हमने शायद वो भुला दिया. हमारी मदर हमें किचन में जाने नहीं देती थी जब तक आपका माउथ भी रिंस्ड ना हो. फॉरगेट अबाउट क्लीनिंग ऑफ योर हैंड्स. So all of these basic hygienic things have to come back to our life. We were unnecessarily, uselessly following those systems of West, which are absolutely invalid. These times when we've understood that it is only and only hygiene that can save us. So wonderful, ma'am. Both of you had been such an asset to us today. Also, last thing that because we have less time always, you know, we want to know more. And आप लोगों के पास तो मैम ज्ञान का खजाना है. मैं आपसे एक बार ये लास्ट जानना चाहूंगी कि फाइनल एक होलसम टेक अवे, एक पैकेट हमें दे दे जो हम अपने साथ ले जाएं और हमेशा अपने साथ रखें. थैंक यू मैम. ओवर टू यू. Take home message from me would be like prevention is better than cure. So always एक hygiene के principle ध्यान रखें. और immune boosters जो हमारे मनस्वी knows better, but हमारे पुराने जो ancient wisdom में हमेशा हल्दी का दूध पीने का, आप vitamins in the form of fruits, juices I would not recommend. आप पूरा whole fruit खाएं. और यदि कोई डेफिशिएंसी है तो आप उसके सप्लीमेंट भी बाहर से ले सकते हैं. सो जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन अगेंस्ट कोविड. जिंक इज द पार्ट ऑफ कोविड आल्सो. सो आप खाएं. कुछ सीड्स वगैरह में काफी जिंक होता है, काजू में होता है. और आप बाहर से भी जिंकोवेट या मतलब जो विटामिन विथ जिंक जो टैबलेट्स आती हैं आप ले सकते हैं. विटामिन सी इज अ वेरी गुड इम्यूनो बूस्टर. सो खट्टे फ्रूट्स खाएं, नींबू का पानी पिएं. और खटाई इन द फॉर्म ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, नींबू, आप छाछ वगैरह ले सकते हैं, उसमें कैल्शियम आपको मिलेगा. तो ये सब जो आप हमारे जो बेसिक फ्रूट्स और बेसिक जो डाइट है इंडियन, इट इज वेरी होलसम एंड बैलेंस्ड डाइट. आप दालों को ले लें. आप डेली में आप दाल, छाछ, फ्रूट, सैलेड और मिक्स्ड अनाज की रोटी खाएं, जो हम बेजड़ की रोटी मारवाड़ी लोग में काफी प्रचलित है, वो खाएं. ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है तो आपको धीरे धीरे पचती है तो आप में ग्लूकोज का स्पाइक नहीं आता है. तो डायबिटिक पीपल के लिए दैट इज वेरी बेनिफिशियल. So these are the like basic things you can take care about.
और जहां तक हो सके स्वस्थ रहें, आपको मेडिसिन की जरूरत भी ना पड़े। Oh, ma'am. I would like Thank to add one more you. thing. Give me a minute. I definitely am coming back to you, Manasvi. It's important that we end up with you because one very important question is there in my mind too. But before this, I would really like what Neeta ma'am has suggested. अगर वो हमने पालन कर लिया तो वैसे ही कोविड क्या दुनिया का कोई माइक्रोब भी ह्यूमन स्पीशीज को टच नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट आ भी गया तो हार्म नहीं कर पाएगा। इंटरेस्टिंगली आप सबको तो पता ही होगा, हल्दी का दूध तो हमारे बचपन से आयुर्वेदा क्या हमारी मम्मियों ने हमें बड़ा ही उसी को करके किया है कि बेटे जिंदगी भर आपको जुकाम खांसी नहीं होगा अगर आप हल्दी का दूध पियो। वही हल्दी का दूध आज वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा टर्मरिक मिल्क सबवे बेच रहा है पैकेज करके। हमारी टेक्नोलॉजी हमें ही पैकेज करके बेची ना जाए, इससे हमें डरना होगा, इससे हमें बचना होगा। उनको जब पसंद आ जाता है तब हमें सडनली लगने लगता है ओ माय गॉड इट वाज सो इम्पोर्टेंट, लुक एट द वेस्ट दे आर यूजिंग इट। सो टाइम रहते हम समझ जाएं जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं, और उसी को हम और हार्नेस करें और वापस इस दुनिया में फैला दें। खुद तो पालन जरूर करें। मनस्वी, इसी के लिए हमें आपकी जरूरत है बेटे। You as the harbinger of this technology once again all over again, you have to get this legacy back. I don't know whether you're writing right now, maybe you're working for a corporate company, but we would want your vision from your mouth. What do you think about coming back to Ayurveda? What is your vision on promoting Ayurveda? Please, over to you. Thank you, Auntie. First 2 points I have written actually that I want to share. First thing, season change में common colds में antibiotics नहीं लेनी है, क्योंकि अभी and common cold is a viral disease. You don't need to take antibiotics for that. That's क्योंकि अभी season change हो रहा है, common cold is very common, तो नहीं लेना है। दूसरा point ये था कि जब मैंने बात की योगर्ट, कर्ड, इन सब चीजों की, never go for the flavored one. जी, क्योंकि yes, आजकल की एज में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स उसमें ऑलरेडी ज्यादा एडेड होते हैं, और जिसकी वजह से वो पॉजिटिव इफेक्ट करने की जगह हमारे गट फ्लोरा को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द मेन 2 points I wanted to share. Now talk about the आयुर्वेदा. आजकल आयुर्वेदा बेसिकली इतना ज्यादा कॉमन हो गया है, तो पीपल नो एवरीथिंग अबाउट आयुर्वेदा। और वेस्टर्न कल्चर ने इतनी सारी चीजें आयुर्वेदा की एक्सेप्ट कर ली हैं, बट दे आर टीचिंग अस our knowledge in a modified way. They have somehow modified it in their way, और फिर हमें वही पढ़ा रहे हैं। Yes. मतलब ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि if we are going to learn Ayurveda from outside the India, that is of no use. This knowledge and this information has been originated from our country, from our roots. We should learn it from here. That will be more efficient and true, I guess. क्योंकि अगर हम बात करें साइंस और टेक्नोलॉजी की, वो अगर हम बाहर जाके पढ़ते हैं, that will be fine. Being very frank, that will be fine because we are not that developed yet. We are in developing state, but we are not that developed in terms of technology or in terms of research. But आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा, ये सब चीजें तो हमारा ही ओरिजिन है, और इसको भी अगर इनके कोर्सेज, इनकी नॉलेज हम बाहर से जाकर लेंगे तो वी आर डिक्रीजिंग आवर ओन वैल्यू। यस, मेरा बेसिकली फर्स्ट मतलब रिक्वेस्ट है ये सबसे, हमारे यूथ से, बड़े लोगों से, सबसे, कि आप लोग अगर आयुर्वेदा के बारे में जानना चाहें या पढ़ना चाहें तो ट्राई एक बार हमारी कंट्री के लोगों को जो ओरिजिनेशन जहां जिस चीज का हुआ है वहां उसकी एक्चुअल वैल्यू बताई जा सकती है और उसका ट्रू फॉर्म बताया जा सकता है। आप बाहर से पढ़ते हैं या समझते हैं, वहां से पढ़कर आके यहाँ समझते हैं, ऐसे कहते हैं ना कि एक बात यहाँ से गई, उसके बाद किसी दूसरे ने कही, फिर तीसरे ने कही, तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। राई का पहाड़ बन जाए या पहाड़ का राई बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इट्स बेटर कि उसको एज इट इज पढ़े। दैट्स व्हाई आई एम आल्सो वर्किंग विद पापा
to promote the Ayurveda, because as you all know, he is not that available on digital platform. I just want to share his knowledge, his immense and incredible knowledge to everyone, and make it available and make people more aware about it. That's exactly what all of us would insist from you, Manasvi. Not just this much, matlab Dr. Leela Dhar's knowledge, whatever you have got, God has been very kind to you. लेकिन आपके through इस world को मिल सकता है, Manasvi. And that is what our urge and insistence would be कि 1 mg के लिए कंटेंट राइटर बनने से के बजाय एक बहुत बड़ा स्क्रिप्चर आपके पास है, एक बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी एज अ फादर गॉड ने आपको गिफ्ट की है, उनके यूज से आप बहुत बड़ा कंटेंट राइट करिए. हमारा पूरा आयुर्वेद हमें सिंप्लीफाई और मॉडिफाई करके दीजिए. दैट इज व्हाट वी वुड वांट फ्रॉम यू. And I think we are already, we've taken up all the time and wanted to talk a lot more, but maybe some other time we, and if Anita ma'am permits, so we will have more sessions to happen like this. Thank you very, very much, Neeta ma'am, for your in a very simplified form. That was fantastic. So Neeta ma'am, na to hum ab kabhi aise note, we end up today's session. Of course, there are a lot of other questions, but I think they were, maybe agar aap 1 minute mein uska jawab de sake, Manasvi. They are talking of, Vat, Kaph and Pitta, as you had mentioned. लेकिन बहुत से लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मुझे मेरी बॉडी टाइप कैसे पता चले? How do I know what I really am of? So please, अगर आप quickly इसको बता दें. Thank you. ईच एंड जैसे अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो हम बोलते हैं कि हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है. एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर. सिमिलरली इन आयुर्वेदा द मेन कंपोनेंट्स, the balance, the synergy of these all components are different for different individual. Yes. So there is no generalized guideline for detecting your prakriti. We call it prakriti in ayurveda. There is no generalized guideline कि आपको देखकर या फिर ऐसे किसी, हाँ हम एक generalized बता दें कि इस एज से इतने एज तक के लोगों की प्रकृति ये होती है, या मेल्स की प्रकृति ये होती है, फीमेल की प्रकृति है, जो भी है उसको नेचुरली मेंटेन करके रखें. हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. अल्टीमेटली गोल लाइफ का ये होता है कि हेल्दी रहे. चाहे हमारी प्रकृति कुछ भी कह रही हो, लेकिन हमारा गोल है हेल्दी रहना. तो उसके लिए नेचुरली चीजों को, नेचुरल अर्जेस को सप्रेस ना करें. Wonderful. Thank you so much. You actually summed it up so beautifully. Thank you, Manasvi. Wonderful session that we had with you. Dr. Neeta, one last thing, unofficially or officially, क्या आप हमें बता सकते हैं, can really viruses be produced in the laboratory? Really? Yeah. If true, then definitely world is heading for a very, very difficult times ahead. Is that so? That virus cannot be produced in lab, but they can be altered in lab, right? Through genetic engineering practices, we can manipulate the genes. We can introduce one gene from one species to another, and like that, it can be cloning can be done. So it can be. It is possible nowadays, and due to ethical considerations, they have been banned many things. But I think sneakily they are doing these things. Many nations are making biological weapons, and it is possible. Okay. Right? So I hope that India also emerges, as one of the leading country where all researches could happen, and we can make, lot. These are the weapons of tomorrow, I think. They can, masses of people will die due to these things. Yeah. So this logical war much more deadly weapons. Yes.
it will happen. Okay. Yes. Thank you so much. I know there are many other questions in the chat box also, but because of time consideration, we have to wind it up. Thank you very, very much. We really appreciate you all we could have you today, and at the same time, a big thank you to all the audience who took out time on a Sunday morning to listen to this unbelievable, incredible advice from both of them. Thank you, Neeta ma'am. Thank you, Manasvi. Bye-bye. Take care. See you next time. Thank you, Neeta ma'am. Bye. Thank you, Manasvi. Thank you, Manjuji, for such a wonderful coordination. And thank you, And- audience, on the behalf of KDF. And we are always thankful for such a wonderful knowledge from all our learned members. So thank Yes. you. Good. Stay safe, Sure. healthy. Bye-bye. Bye. Thanks to all of you. So many thanks to all of you. It's very nice.